Greeting in the great and glorious name of the Lord Jesus Christ. मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। It is immense pleasure that I have privilege to be here and share the word of God. ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सबके सामने यहाँ मौजूद हूँ खुदा के कलाम को सुनाने को। And God has created a pleasant atmosphere for us. और खुदा ने हमारे लिए ये खुशगवार मौसम जो है हमें बख्शा है। And it is a matter of immense pleasure that God has given us this land. और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये जमीन बख्शी है For His house. अपने घर के लिए। So we are thankful for God's this provision. और हम खुदा की इस बख्शिश के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। And it is a great privilege for us that we are here, the land which God has provided us. और हम बहुत खुश हैं कि खुदा ने ये खुदा का घर हमें अता किया है। So God has given this land for the church building, for Narrowgate Ministry Church. खुदा का ये मंसूबा है और उसका ये प्लान है कि उसने नैरोगेट मिनिस्ट्री हमें अता की है। खुदा ने ये घर हमें बख्शा है। So we will read from Old Testament, First Chronicles chapter 21 and verse 20. हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे पहला तवारीख 21वां बाब उसकी 20वीं आयत। First Chronicles chapter 21 and verse 20. पहला तवारीख 21वां बाब उसकी 20वीं आयत। It is written here, बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, while Araunah was threshing wheat, he turned and saw the angel, his 4 sons who were with him hid themselves. और अरनान ने मुड़कर उस फरिश्ता को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके साथ थे छुप गए। उस वक्त अरनान गयून देवता था। Then David approached, and when Araunah looked and saw him, he left the threshing floor and bowed down before David with his face to the ground. और जब दाऊद अरनान के पास आया तब अरुणा ने निगाह की और दाऊद को देखा और कहलेयान से बाहर निकलकर दाऊद के आगे झुका और जमीन पर सरनगू हो गया। David said to him, "Let me have the site of your threshing floor, so I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped. Sell it to me at the full price." तब दाऊद ने अरुणा से कहा कि इस कहलेयान की ये जगह मुझे दे दे ताकि मैं इसमें खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाऊं, तो इसका पूरा दाम लेकर मुझे दे ताकि वबा लोगों से दूर कर दी जाए। Araunah said to David, "Take it. Let my lord the king do whatever pleases him. Look, I will give the oxen for the burnt offerings, the threshing sledge for the wood and the wheat for the grain offering. I will give all this." अरुणा ने दाऊद से कहा, तू इसे ले ले और मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। देख, मैं इन बैलों को सोख्तनी कुर्बानियों के लिए और दाऊद ने के समान ईंधन के लिए और ये गयून नजर की कुर्बानी के लिए देता हूँ। मैं ये सब कुछ दिए देता हूँ। But King David replied to Araunah, "No, I insist on paying the full price. I will not take for the Lord what is yours, or sacrifice a burnt offering that cost me nothing." दाऊद बादशाह ने अरुणा से कहा,
नहीं नहीं, बल्कि मैं जरूर पूरा दाम देकर तुझसे खरीद लूंगा, क्योंकि मैं उसे जो तेरा माल है खुदावंद के लिए नहीं लेने का, और ना बगैर खर्च किए सोक्तनी कुर्बानी चढ़ाऊंगा। David paid Aruna 600 shekels of gold for the site. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offering. He called on the Lord, and the Lord answered him with fire from heaven on the altar of burnt offering. सो दाऊद ने अरुणा को उस जगह के लिए 600 मिस्काल सोना तोल कर दिया, और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मस्बा बनाया और सोक्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाईं, और खुदावंद से दुआ की, और उसने आसमान पर से सोक्तनी कुर्बानी के मस्बा पर आग भेजकर उसको जवाब दिया। Then the Lord spoke to the angel, and he put his sword back unto the sheath. और खुदावन ने उस फरिश्ता को हुक्म दिया, तब उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। At that time, when David saw that the Lord had answered him on the threshing floor of Aruna, the Jebusite, he offered sacrifices there. उस वक्त जब दाऊद ने देखा कि खुदावन ने यबूसी अरुना के कहलयान में उसको जवाब दिया था, तो उसने वही कुर्बानी चढ़ाई। The tabernacle of the Lord, which Moses has made in the desert, and the altar of burnt offering were at that time on the high place at Gibeon. क्योंकि उस वक्त खुदावंद का मस्कन, जिसे मूसा ने बियाबान में बनाया था, और सोक्तनी कुर्बानी का मस्बा जबहून की ऊंची जगह में थे। But David could not go before it to inquire of God, because he was afraid of the sword of the angel of the Lord. लेकिन दाऊद खुदा से पूछने के लिए उसके आगे ना जा सका, क्योंकि वो खुदावन के फरिश्ता की तलवार के सबब से डर गया। Be blessed by listening the scripture. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सब पर हो। Let's pray. आइए दुआ करें। Thank you, Lord Jesus Christ, आइए यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं for this opportunity which you have given unto us. इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा है। Despite this weather, your people, they are here, and we all are get together in this site. और खुदावन खुदा इस मौसम के बावजूद, जबकि बारिश का मौसम है, फिर भी आए खुदावन तेरे लोग तेरी हैकल में इस जगह पर मौजूद हैं। And we are feeling your presence, and Holy Spirit is hovering each one of us. आए खुदावंद, हम तेरे मस्सा को महसूस करते हैं, क्योंकि तेरा रूह कुद्दस हमारे दरमियान में मौजूद है। And filled us with your Holy Spirit. आए खुदावंद, हमें रूह कुद्दस से भर दे, And give us the spirit of understanding, और हमें समझने की रूह अनायत कर, so that we can understand your word ताकि हम तेरे कलाम को समझें and lead us unto the way of righteousness. आए खुदावन, तू हमें रास्ते की राह पर चला। And our heart is filled with the gratitude that you have provided this land for your house. आए खुदावंद, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तूने हमें आए खुदावंद अपने घर की ये जमीन बख्शी है। And covered us with your precious blood. आए खुदावंद, हमें अपने कीमती लहू से भर दे। Heavenly Father, I ask in the name of Jesus. Amen. आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। This night, our topic is thanksgiving for purchasing land for the church.
आज का हमारा मजमून है खुदा के घर को खरीदने की शुक्रगुजारी। So Bible tells us बाइबल बयान करती है that there was a plague among the Israelites, कि इस्राएलियों में जो है वो कहत थी, and there was a plague, वबा थी, and God guided David, और खुदा ने दाऊद को जो है वो बताया, and God guided him that you should build an altar for God. और खुदा ने उसको कहा कि तूने मज़बा को बनाना है, And he went to the Aruna और वो अरुना के पास गया for the piece of land ताकि वो जमीन का हिस्सा खरीद सके, wherein he can build an altar for God. ताकि वो वहां पर खुदा के लिए मज़बा तैयार कर सके। And King David went himself, और जो दाऊद बादशाह है वो खुद ही गया उसके पास, and as a king he can summon Aruna in his court. और जैसे कि वो खुद बादशाह था तो बादशाह तो अपने महल में उसको खुद बुला सकता था, But he went over there, लेकिन वो खुद उसके पास गया, and because he need a place wherein he can build an altar for God. क्योंकि वो खुद उस जगह को खरीदना चाहता था जहां वो खुदा के लिए घर को तैयार करता। And Bible tells us when David went over there, बाइबल बयान करती है जब दाऊद बादशाह खुद वहां पर गया, and Aruna offered him that you can take this land free of cost. और अरुना ने उसे कहा कि तू ये जगह जो है वो मुफ्त में ले सकता है। But Bible tells us that King David, he denied it. लेकिन बाइबल बयान करती है कि दाऊद बादशाह ने मना कर दिया कि नहीं, Because he knew that purchasing land required sacrifice. क्योंकि वो जानता था कि जो खुदा के लिए जमीन है उसको खरीदना ये एक कुर्बानी है, Because that is a very sacred land. क्योंकि वो खुदा का एक इलाही और मुकद्दस मंसूबा है। Therefore, King David refused to receive the threshing floor for free of cost. और दाऊद बादशाह उसके लियान को मुफ्त में खरीदने से उसने इनकार कर दिया, And he said that I will pay full price. और उसने कहा कि मैं इसका पूरा जो है वो पैसा दूंगा। So in this way, that is the altar for the God, but he paid full price. ये इस तरह से वो तो खुदा का मज़बा है लेकिन उसने पूरी रकम से उस मज़बा को खरीदा। He did not acquire without any cost. उसने उसे कोई भी इस तरह से रकम बगैर रकम दिए नहीं लिया। So Bible tells us that the financial sacrifice made by the believer nowadays, और बाइबल बयान करती है कि जो खुदा के ईमानदार लोग हैं वो माली तौर पर माली कुर्बानी दें खुदा को, and they acquired the land and pay the full price. उन्होंने उस जमीन को लिया और पूरा पैसा जो है उस जमीन का दिया। And the believers, they are investing money for the piece of land where they built a church for God. और जो ईमानदार लोग हैं वो पूरा पैसा देते हैं खुदा के घर को, हैकल को खरीदने के लिए। And King David set a good example. और दाऊद बादशाह ने एक बड़ी अजीम मिसाल कायम की है। And this land is also provided by God, but the amount is paid. और ये जो जमीन है ये भी खुदा ने मुहैया की है और इसके जो पैसे हैं वो भी दिए गए हैं। Because God is a provider. क्योंकि खुदा जो है वो बख्शने वाला है, यहोवा यरी है। Because God provides resources for His work. क्योंकि खुदा जो है वो वसाइल मुहैया करता है अपने काम के लिए। When God gives a vision, He also provides the means to accomplish it. जब खुदा रोया देता है तो वो वसाइल भी मुहैया करता है ताकि उसके काम रुके ना बल्कि काम होता रहे। Because God is living God. क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। And His treasure is heaven. और उसका जो आसमान है वो उसका खजाना है। So when He gave us a vision and He opened His sky, opened His heaven,
and provide resources. और जब वो रोया देता है तो वो अपने आसमान को खोल देता है और वसाइल मुहैया करके बरकत बख्शता है, Because God is living God. क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है And He is not taking anything free of cost. और वो जो है वो मुफ्त में नहीं लेता, But He want to build His house, but purchase the piece of land. और जो है जब उसका घर खरीदते हैं तो वो रकम देकर खरीदी जाती है। Philippians chapter 4 and verse 19. फिलिपियों चौथा बाब उसकी 19वीं आयत। Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियों चौथा बाब उसकी 19वीं आयत। And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। So whatever need we have a need, जो भी चीज की हमें जरूरत होती है and He meet all our needs. वो हमारी हर तरह की जरूरियात को पूरा करता है, He provides us. वो हमें अता करता है। So we are not seeing the situation, but we believe that He will provide us. हमें हालात को नहीं देखना बल्कि उस पर एतकाद रखना है कि वो अता करेगा। The acquisition of land is often possible because God moves in our heart, and we are offering. हमें जो है वो तब हम उस जगह को खरीद सकते हैं जब खुदा हमारे दिल को उभारता है और हम उस जगह को लेते हैं। So we give thanks for God's provision and trust Him for every future need. और हमें खुदा पर मुस्तकबिल के लिए भरोसा करने की जरूरत है क्योंकि वो ही हमें सब कुछ अता करता है। And if He has given us this land, it means He can give us all resources to build up His church. अगर खुदा ने ये जमीन अता की है तो इसका मतलब कि वो वसाइल मुहैया करेगा ताकि खुदा की हैकल तामीर हो सके। It means we should put trust in Him. इसका मतलब कि हमें खुदा पर भरोसा करना है। And when we put our trust in our God, so our God provides us. जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा हमें सब कुछ मुहैया करता है, Because His treasure are full for His people. क्योंकि उसके खजाने जो है भरे हुए हैं अपने लोगों के लिए। And He touched the hearts of the people. वो अपने लोगों के दिलों को छूता है। And His peoples, they are offering and they are paying money for the sacred work to build the church. और वो अपने लोगों के दिलों को उभारता है ताकि वो तामीराती काम के लिए वसाइल जो है वो खुदा के घर में दें। And the house of God is the most important place in this world. और खुदा का घर जो है वो सबसे जो है वो अहम जगह है इस दुनिया में। And Bible tells us the angel of God was killing people. और बाइबल बयान करती है जो फरिश्ते थे वो उस जगह पर An angel of God killed the people. जो फरिश्ते थे खुदा के वो कत्ल कर रहे थे। But Bible tells us, लेकिन बाइबल बयान करती है as King David, he get that place, कि दाऊद बादशाह को वो जगह जो है वो मिल गई थी and he built the altar on that place. और उसने उस जगह पर खुदा के मज़बा को बनाया। And the Bible tells us that the killing of people was ceased. और जो लोगों की अमवात थी वो रुक गई थी। And the plague was stopped. और जो वो वबा थी और वो भी रुक गई थी। And there is a great significance of that place. और उस घर की जो है वो बहुत ही खास बात है। And I believe that this piece of land is very important
in the sight of God. और मेरा ईमान है कि ये जगह खुदा की नजर में बहुत ही कीमती है, Because God fixes his eyes on the place. क्योंकि खुदा अपनी नजरें मरकूज करता है अपनी जगह पर। When believers, they are worshiping and they are praying and they are asking God for something, क्योंकि जब ईमानदार खुदा की हजूरी में उसकी परस्तश करते हैं, उससे दुआ करते हैं और उससे मांगते हैं, and God bless them. तो खुदा उन्हें बरकत बख्शता है। So this land is very important. तो ये जो जमीन है ये बहुत ही अहम है, And the land became a place of worship and God's presence. और वो जो जगह है वो मखसूस हो जाती है खुदा की इबादत के लिए, और उसका अबर और मस्सा छाया रहता है। The land David purchased eventually became the location of Solomon's temple. और जो दाऊद बादशाह ने जगह खरीदी थी, वो सुलेमान बादशाह ने उसको हैकल तामीर किया और वो सुलेमान बादशाह की हैकल बन गई। So after generation to generations, peoples, they gathered together and received multiple blessings. और पुश्तों के बाद जो है वो लोग जो है खुदा के घर पे जाते, उसकी हैकल में जाते और खुदा से बरकतों को हासिल करते हैं। So Bible tells us 2 Chronicles chapter 3 and verse 1. दूसरा तवारीख Chapter 3 verse 1. तीसरा बाब उसकी पहली आयत। Then Solomon began to build the temple of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David. It was on the threshing floor of Aruna the Jebusite, the place provided by David. और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मूरिया पर, जहां उसके बाप दाऊद ने रिवायत देखी, उसी जगह जैसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी अरुना यबूसी के कहलयान में खुदावंत का घर बनाने लगा। So the temple was built over there. तो जो हैकल है वो वहां पर तामीर होने लगी, And Bible tells us the presence of God was there. और बाइबल बयान करती है कि खुदा का अबर और मस्सा वहां छाया रहा। So God is among his people. खुदा अपने लोगों के दरमियान आ जाता है। So this is most important for us that we are here. कि ये बहुत ही अहम बात है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। And God's people will gather after generation to generation. और लोग जो है वो पुश्त और नस्लों के बाद आते जाते हैं। And I pray that this place will be very important for God's people. और मेरा ईमान है, मैं दुआ करता हूँ कि ये जगह जो है लोगों के लिए बहुत ही बाबरकत रहे। And here I believe that the life of the people will be transformed. और मेरा ईमान है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियां तब्दील होंगी। And I believe that God will answer the prayer, the intercessors, they pray here. और मेरा ईमान है कि लोग यहाँ पर दुआ किया करेंगे और खादिम शिफायत किया करेंगे। Because this is this will be the house of God. क्योंकि ये घर खुदा का घर होगा। And now this is just a land for the church. और अभी तो ये सिर्फ जमीन है हैकल की। And I believe that there will be a splendid building here. और मेरा ईमान है कि यहाँ पर एक खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग होगी। And God's presence will be here. और खुदा की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। And the people will come and they will be healed. और लोग यहाँ पर आएंगे और शिफा पाएंगे। And people will come and their needs will be fulfilled here. और लोग यहाँ पर आएंगे और उनकी जरूरियात जो है वो पूरी होंगी। Because God will be here. क्योंकि खुदा यहाँ पर मौजूद होगा। And God is present right now. और खुदा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। Because He is here and He will bless His people tonight
at the forthcoming days. और खुदा यहाँ पर मौजूद है, वो अपने लोगों को आज भी बरकत देगा और आने वाले दिनों में भी बरकतों से भरेगा। And tonight we gather with grateful heart to thank God for the land He has given us and for the holy place where His name will dwells. और आज हमारे दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, और ये शुक्रगुजारी की इबादत है कि खुदा ने खूबसूरत जमीन अता की है अपने घर के लिए। और And despite this rough weather, the people are here. और इस खराब मौसम में भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। And this is it is manifested that the people's heart is here because God's eyes are fixed here. और ये बात ये है कि लोग जो हैं वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, और खुदा की जो नजरें हैं वो भी खुदा के घर में यहाँ पर लगी हुई हैं। And tonight we are filled with gratitude. और आज की रात हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। And throughout the Bible, land is not merely soil and territory. और बाइबल में यानी सिर्फ जो घर है वो मिट्टी का, It is not just land. ये सिर्फ एक जमीन ही नहीं है या मिट्टी पर ही नहीं है। It is a gift of covenant, provision, inheritance and blessings from God. बल्कि ये एक तोहफा है, ये अहद है, और ये खुदा की अता करदा बरकत है। And likewise, the temple represents God's presence among His people. और जो हैकल है वो इस बात की अक्कासी करती है कि खुदावंद अपने घर में मौजूद होता है। And we are celebrating the legal acquisition of this land as a foundation for the house of God. और हम ये शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं, खुदा ने इस हैकल की बुनियाद डाली है और ये जमीन बख्शी है। A place of refuge, worship and transformation of lives. ये जो जगह है ये खुदा का घर है, और ये इबादत की जगह है, और ये वो जगह है जहाँ पर जिंदगियां तब्दील होंगी। So purchase of land for a church is not just a financial transaction, but is a spiritual milestone. और ये जो है ये घर सिर्फ माली तौर पर ही नहीं इसे खरीदा गया, बल्कि ये रूहानी तौर पर खुदा का घर है। So throughout scripture, God guided His people to acquire land for worship, ministry and the advancement of His kingdom. और ये जो घर है बाइबल में भी जब हैकल की तामीरात होती है तो खुदा का घर हैकल जो है वो इबादत के लिए और लोगों के जो मौजूदाती काम है उनकी जिंदगियों में रूनुमा होते हैं खुदा की हैकल से। When a church purchases land, it is a testimony of faith, vision, sacrifice and God's provision. और जब खुदा घर देता है अपना तो वो घर जो है वो बरकतों से मामूर होता है और लोगों को बरकतें हासिल होती हैं। So God's provision for His house. तो खुदा जो है वो मुहैया करता है अपने घर के लिए। Purchasing land demonstrate faith in God's future plans. और जब खुदा हैकल जमीन देता है तो वो मुस्तकबिल के लिए भी अपने घर में बरकतें देना शुरू कर देता है। So God often led His people to possess land as a part of His divine purpose. और वो अपने इलाही मंसूबे को जो है वो जिंदगियों पर जारी करता है अपने घर के वसीला से। So Bible tells us, बाइबल बयान करती है, we will read Genesis chapter 12 and verse 7. हम पढ़ेंगे पैदाइश 12वां बाब उसकी 7वीं आयत। The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावंत के लिए जो उसे दिखाई दिया था
एक कुर्बानगाह बनाई। So Bible tells us Abraham is a father of the believers. और बाइबल बयान करती है इब्राहिम जो है वो ईमानदारों का बाप है। And God made promise that this land I will give you. और खुदा ने उससे वादा किया कि ये जो जमीन का हिस्सा है ये मैं तुझे दूंगा। And he offered sacrifice of thanksgiving. और उसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हुजूर में गुजरानी। Before he get the land, he was filled with gratitude. और उस जमीन को के मिलने से पहले ही वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ था खुदा की। That is advanced thanksgiving. और ये है एडवांस शुक्रगुजारी। Because he believed and he trusted in God that whatever promise God made, and he is true in his promises. और वो ईमान रखता था कि खुदा अपने वादों में सच्चा है और वो वाकई ही कादिर है और वो सब कुछ मुहैया करता है। And he offered thanksgiving offering. और उसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो गुजरानी। And in the same way, when we sacrifice and offered thanksgiving sacrifices, it means we trust in God that in the forthcoming days He will bless us and give us more resources. इसी तरह से जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानते हैं, तो हम ईमान रखते हैं कि खुदा मुस्तकबिल में भी हमें बरकतों से मामूर करेगा। And I believe that this place is a sacred place because God has anointed this place because of His presence, and He is here, and very beautiful and splendid building will be built here. मेरा ईमान है कि खुदा इस जगह को एक शानदार बिल्डिंग के तौर पर बनाएगा क्योंकि ये एक मुकद्दस जगह है। And this is gratitude that God has given us. और ये ही शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें ये जगह बख्शी है। And not Pastor Nadeem, he has not waited for more resources, but his heart and all church members' heart is filled with gratitude. और पास्टर नदीम बरकत ही इस बात से नहीं खुदा की शुक्रगुजारी करे, बल्कि सारे लोग जो हैं वो मिल बैठकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं इस जगह के लिए। And I believe that God will give more resources. और मेरा ईमान है कि खुदा अपने बंदा को और भी ज्यादा वसाइल मुहैया करेगा। And the left amount will be paid very soon. और जितनी रकम बाकी है देने की वो भी खुदा उसके लिए भी मुहैया करेगा। Because our heart is filled with the gratitude whatever He has given, and we give thanks for all His provision. हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि वो ही यहोवा यरी है और वो ही अता करेगा अपनी हैकल के लिए। And I believe that He will provide. और मेरा ईमान है कि वो अता करेगा। Let's pray. आइए दुआ करें। We all stand up and give thanks to the Lord. आइए आप सब खड़े हो जाएं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। Lift up your hands अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें and ask for and give thanks for all the provisions. और खुदा से उसकी सारी इन तमाम बख्शिशों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। And thankful to God for the piece of land. और इस जमीन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। So God is a provider, and He will provide more resources. हमारा खुदा यहोवा यरी है और वो और वसाइल मुहैया करेगा अपने घर के लिए। And there are many examples in the Bible that the people of God, when they give gratitude God, बहुत सारी मिसालें जो है वो बाइबल में है कि जब लोग उसकी शुक्रगुजारी करते हैं and God
give them more resources. और खुदा उनको और अता करता है। And Bible tells us that the King Solomon, when he sacrifices a burnt offering and offerings, और बाइबल बयान करती है कि जब सुलेमान बादशाह ने कुर्बानियां गुजरानी, and Bible tells us thousands sacrifices, और उसने हजारों कुर्बानियां गुजरानी खुदा के लिए, 1,000 sacrifice. 1000 कुर्बानी गुजरानी। And that night God met him, appeared to him. और उसी रात खुदा उससे दिखाई दिया। After the thankful and gratitude, God appeared to him. और उस शुक्रगुजारी के बाद खुदा उसे दिखाई दिया। And God said that I will give you that no king on the earth they have richness like you. और खुदा ने उसे कहा कि इस दुनिया में कोई भी बादशाह के पास इतनी दौलत नहीं होगी जितनी दौलत मैं तुझे दूंगा। I will give you riches of the world. और मैं तुझे इस दुनिया की दौलत बख्शूंगा। And it means that his treasures are filled with richness. इसका मतलब कि उसका खजाना है वो भरा हुआ है। So he is open for the thankful people. और वो खुला हुआ है उन लोगों के लिए जो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। And our heart is filled with the gratitude for this piece of land. और हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं इस जमीन के लिए। And I believe that God will open his treasure for us. और मेरा ईमान है कि खुदा अपने इलाही खजाने को अपने लोगों के लिए खोल देगा। And he will touch the heart of the people, and the people of God, like David, they will say, yes, I will pay. और खुदा लोगों के दिलों को उभारेगा, उनके दिलों को छुएगा और लोग कहेंगे कि हम खुदा के घर के लिए देंगे। And I believe that God will fill their houses with his richness. और मेरा ईमान है कि खुदा अपने घर को अपने जलाल से मामूर करेगा और दौलत बख्शेगा। Thank you, Lord Jesus Christ, यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं for your wisdom and for your this provision. तेरी हिकमत के लिए और तेरी इस बरकत के लिए। And I believe that this house will be your house. और मेरा ईमान है कि ये घर तेरा घर होगा। And many people will come and you will touch their hearts, and their lives will be transformed in the forthcoming days. और मेरा ईमान है कि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे तुझसे ढेरों बरकत पाकर जाएंगे। And tonight, that is a day of gratitude. That is a night of gratitude that you have given this land. और आज की रात शुक्रगुजारी की रात है कि खुदावन तूने ये जमीन मुहैया कर दी है। And we give thanks to God. और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord Jesus Christ. यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। Heavenly Father, I ask in the name of Jesus, Amen. आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।